Hello, folks. I hope your CAT preparation is going well. I'm here to give you some information on preparation tips, especially for DILR for CAT. नॉर्मली DILR को लेके कईयों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है विथ रेस्पेक्ट टू क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली बिकॉज कैट का कोई कॉन्क्रीट सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि हाँ बस ये पढ़ लो या इस बुक से पढ़ लो आपका कैट निकल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे यू हैव द स्टैंडर्ड मटेरियल, है ना, कि ये मटेरियल से आप पढ़ लो, इसमें से कुछ पूछा जाएगा बट डायरेक्टली पूछा जाएगा। अनलाइक दोस टेस्ट, कैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, यू जस्ट नीड टू बी गुड एट थिंग्स, दैट्स इट, है ना। तो वो कौन सी चीजें हैं एंड व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू टू गेट द best score possible in CAT. And now this is for the DILR section specifically. Let's talk about a concrete plan for your DILR preparation, especially for CAT. ठीक है, चालू करते हैं। My name is Amit Surana. I am your DILR expert. I have over 10 years of experience and I've trained multiple 99 percentile plus achievers. Agenda for today is quite simple. We are going to keep it as short as possible, give you as much information as possible, है ना। जितने कम समय में जितना ज्यादा ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ, that has to be the agenda for today. But what are the points that we are going to discuss? First, we are going to look at how to understand what exactly is the section all about, है ना। DILR अलग अलग से अगर आप पढ़ने जाओगे तो it is way too huge, right? उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी कहीं सोचा भी नहीं था कि ये कैट में पूछा जा सकता है कि नहीं। So we are not going to discuss what DI or what LR is, because then we will deviate from the topic of CAT, right? So we are going to talk about what DILR section is all about. Next, we are going to look at what the actual syllabus is. Is there an actual syllabus or not? Or at least what we have found from over the years. इतने साल से CAT चलते आ रहा है, CAT एग्जाम चलते आ रहा है, उसमें से क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे पूछा गया था। We'll have a quick look at that and maybe come to something as close as to a conclusion. We can't conclude, ऐसा कहीं पर भी hard and fast syllabus नहीं है for CAT. You need to make peace with that fact. ठीक है। Next, preparation technique क्या होनी चाहिए, especially for DILR if you are starting your preparation now. And what should be your practice technique. Towards the end, we'll just discuss a few focus points that you should keep in mind when you're getting into CAT preparation, specifically DILR preparation. Let's talk about the first thing, understanding the DILR section. One of the most important things that you should know about a test is not how to answer that, but at least you should know what the test is all about. उसमें क्या आता है, कैसे आता है, and the best way to look into that, especially for CAT, is to do a quick trend analysis, है ना, कि हमने इतने साल में CAT में क्या देखा है, क्या चेंजेस है, क्या ऐसी चीजें हैं जो पूछी गई थी, क्या नहीं पूछी गई थी। वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, ठीक है। तो वी हैव नोटिस दैट ओवर द इयर्स, राइट, तो हम कंपेयर कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2017, बिकॉज 2017 एंड उसके पहले द पेपर्स वेर वेरी सिमिलर. Obviously, before that, the entire pattern had changed from written test. It had become a computer-based CBT बन गया था, computer-based test. So we are going to start with 2017. Also because last 6-7 years अगर आप देख लो तो I think that's way more than sufficient, right? So what we are going to do is, because DILR faculty, I wanted to bring in a little bit of touch of DILR in it. तो हम थोड़ा data देखने वाले हैं. Let's understand a few things, right? तो यहाँ पे देखो क्या है. We're going to talk about how many 4 question sets were asked, है ना. Number of sets देखने वाले हैं, 4 question वाले. So एक set में there are 2 parts. We all know that. Instructions होते हैं and then we have questions, right? So how many sets have we seen that had 4 questions in them? How many sets have we seen that had 5 questions in them? 6 question sets. And towards the end we are also going to look at, so we've seen क्या पूछते हैं, बट क्या एक्सपेक्टेड है हमसे, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज नॉट टू क्रैक द एंटायर पेपर, है ना. पूरा 100% ऑफ द पेपर क्रैक करना इज नॉट द एम एंड इट्स इम्पॉसिबल, राइट. दे इंटेंशनली सेट अ पेपर इन सच अ वे कि कोई भी इन द गिवन टाइम पूरा 100% ऑफ द पेपर एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर पाता है, राइट. द पेपर का इंटेंशन ही वही होता है. तो वी आर गोइंग टू लुक एट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, required for 99 percentile over the years. क्योंकि अब ये हमारे पास कॉन्क्रीट डेटा है कि 17 में 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स से मिला था, राइट.
उस मार्क्स को रख के हमने उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। सो 17 से लेके 2023 का हम एनालिसिस देखेंगे and we'll see what we can expect for 2014. Now let's start with 2017. 2017 में we had 8 sets that were 4 question sets each, right? 8 sets थे, हर सेट में 4 क्वेश्चन, टेक्निकली गिविंग अस व्हाट 32 क्वेश्चंस, राइट। हमें कितना 32 क्वेश्चंस पूछा गया था, तो 32 into 3 is 96 marks, right? 32 questions में से for you to get 99th percentile in LRDI section, you required 17 correct ones, right? So technically the score has to be what 17 into 3, 51 marks, right? तो 51 marks अगर आपके आए हैं 2017 में, then you would have received 99 percentile and above in the DILR section. Now in 2017 there were no 5 questions or 6 question sets asked at all. 2017 तक we had only 4 question sets. Similar was the case with 2018 also. हमने सिर्फ 4 question वाले sets ही देखे हैं. Number of questions remained the same. 8 sets were asked. But in this particular year, थोड़ा सा increase हो गया था for 99th percentile and above. Technically, probably because the paper was a little easy. The applicants, there's a lot of things that go behind those, right? So let's assume that the paper was comparatively easier. ठीक है? So when it came to 2018, we required around 19 correct questions, correctly attempted questions to get 99th percentile. ये था 2018 में. 2019 में भी pattern same था. 8 sets, 4 questions each, making it as 32 questions. And the number of correct ones required were 18. So इन 3 सालों में अगर आप देखोगे 32 पे 32 questions में से you need 17, 19, 18. That's about half and a little more, correct? 32 का half क्या है? 16 and a little more. So 16 and 1 more question. 16 and 3 more questions. 16 and 2 more questions. So can we say over the years 17, 18, 19 में हमने देखा है कि 50% of the questions अगर आप कर लो and some extra, you definitely would get 99th percentile and above. ठीक है? Now what happened in 2020? 2020 में हुआ था pandemic, right? The whole COVID fiasco. So because of that there was a lot of confusion कि test होगा नहीं होगा तो क्या format change होगा, will there be anything new? So yes, there were new things introduced. यहाँ पे our DI section, LRDI section was 60 minutes long. 1 घंटे का एक section होता था. So technically 3 sections, 3 घंटे का एग्जाम था. But then in 2020, because they could not live with the fact that they'll have to call in lakhs of people together around the same time, right? क्योंकि 2 ही slot होते थे पहले. So what they did was they increased the number of slots from 2 to 3 and reduced the time. So instead of making it 60 minutes per section, उन्होंने उसे 40 मिनट का बना दिया था. मतलब ओवरऑल एग्जाम जो 3 घंटे का होता था उसे कट डाउन करके 2 घंटा कर दिया था, 2 hours, right? By making it 3 different slots, right? So since they had to reduce the amount of time, they also obviously have to proportionately reduce the number of questions also, right? So उन्होंने क्या किया in 2020, they reduced the number of sets from 8 to 5. But then what did they do? Instead of simply asking 5 sets of 4 questions each, they wanted to give more importance to some sets, है ना? कुछ सेट्स जिसके ज्यादा वेटेज है, कुछ सेट्स जिनके कम वेटेज है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द काउंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या हुआ था 2020 में वी सॉ 3 सेट्स दैट वेर 4 क्वेश्चंस ईच एंड 2 सेट्स दैट वेर 6 क्वेश्चंस ईच, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 क्वेश्चन वाला सेट ज्यादा डिफिकल्ट था या 4 क्वेश्चन वाला सेट काफी इजी था. The difficulty level had no direct relation to the number of questions, but ultimately ये एक simple assumption था कि अगर number of questions ज़्यादा है per set में, then it would probably end up meaning that we would have maybe a little longer time consuming set. ठीक है? तो ये हमने देखा था 2020 में. Now in 2020 they later realized that there was a lot of kind of a backlash because the entire section seemed way too lengthy for 40 minutes. 60 minutes से 40 minutes हुआ था, but then it seemed way more lengthy. So in order to reduce that in 2021, what they did was instead of making it a 5 set section, उन्होंने उसे 4 set का बना दिया था. So there were 2 sets with 4 questions and 2 sets with 6 questions. So
क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेंट फ्रॉम 32, यहां पर भी 32, यहां पर भी 32. It came down to what? Here we had how much? 5 sets, right? So here 12 questions and here 12 questions. It came down to 24 questions. अब 24 को भी उन्होंने कम करके क्या किया था, 20 questions किया था, where we had 2 sets of 4 questions each and 2 sets of 6 questions each. ठीक है, so 10 plus 10, 20 questions. Now what did we see when there was 24 questions asked? 99th percentile के लिए you required 14 questions to be accurate for 99th percentile and above, right? 20 questions में there were about 13. So what are we seeing? We are seeing double and some extra, है ना? Half and some extra. 24 का half 12 है and 2 questions more. 20 का half 10 है, 3 questions more. Then in 2022 again they brought in a little bit of change in the way DILR section presented itself. इंस्टेड ऑफ आस्किंग सेट्स जहां पे उनके वेटेज अलग अलग हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन वाला सेट या 6 क्वेश्चन वाला सेट इज गोइंग टू टेक द सेम टाइम, यू विल इन्वेस्ट मोर टाइम इन सॉल्विंग दिस, करेक्ट? आप इस पे ज्यादा ध्यान दोगे क्योंकि एक सेट सॉल्व करने पे आपको 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मींस व्हाट, 2 into 3 6 मार्क्स एक्स्ट्रा. तो सिंस द डिसीजन मेकिंग बिकेम अ लिटिल मोर बायस्ड, यहां पे कोई बायस नहीं था, यहां पे ईच सेट हैड द सेम वेटेज. यू बेस्ड ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, कौन सा टॉपिक आपको इजीली समझ में आता है एंड यू आर मोर कन्वीनियंटली एबल टू सॉल्व इट, उन सारे डिसीजंस को रख के यू मेड द चॉइस ऑफ सॉल्विंग विच वंस. बट देन व्हेन इट केम टू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पे वेटेज अलग अलग है, तब वहां पे दिक्कत आने लग गया बिकॉज बायस हो गया. अब लोगों को लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन वाला सेट ज्यादा करना चाहिए than doing the less question one, and then there was an imbalance. So again, to bring that balance, what happened in the year 2022, they brought it down to 4 sets of 5 questions each. So 4 set ही थे, number of questions still remained 20, but instead of making it as 2 different weightages, they gave again the same weightage to each set. तो अब क्या हो रहा है, 5 questions के set है, मतलब हर set के 15 मार्क हैं, right? Every set you will have 5 questions, 5 into 3 15 marks. That means अब जब आप decision लोगे, the decision will be not based on the number of questions and the weightage. Instead, it will be based on the other factors that we just spoke about. And something similar we saw in the year 2023 also, जहां पे क्या 4 sets were asked of 5 questions each, right? Again, if you notice, what do you see? 20 में से half 10 plus 2, यहां पे 20 में से half plus 1 11. So what are we seeing? Ultimately, for us to get 99th percentile and above, है ना, 99th percentile, let's say around 99th percentile in DILR, you required what? 50% of the questions, 50% of the questions and some, है ना, and some extra, कभी 1 कभी 2 कभी 3 extra लग रहे थे, right? But this should not come at the price of accuracy. कई बार क्या होता है कि हाँ बस 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट कि करना है ठीक है, बट सही करना है ये भी जरूरी है. तो 50% and above questions with complete accuracy, 100% accuracy. This was very very important because a lot of people stop considering this, क्योंकि उन्हें लगता है इतना ही टाइम है, लिमिटेड टाइम है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, सही करो गलत करो, दैट बिकम्स अ सेकेंडरी थॉट, बट दैट हैज टू बी द प्राइमरी थॉट, है ना, कि सही करने हैं, अगर सही करेंगे तभी उनके मार्क्स हमें मिलेंगे. नाउ व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन 2024? अ कपल ऑफ थिंग्स. वन, because in the last 2 years they have worked out a similar plan which they have been doing for a lot of years before that. Since they wanted to test out different theories, they changed the pattern thrice and 4 times. So they changed it from here to here once, then twice, then thrice. But then it seems like they've stuck with this particular pattern जहां पे 5 question वाले 4 set होने वाले हैं. So we can kind of expect that in 2024 also. But then we can't really say, right? Unless and until the first lot people जाके पेपर ना देखें, तब तक के लिए कोई तसल्ली नहीं है कि ऐसा ही होगा. But then it seems like it, right? It seems like it. Ultimately, एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली, वो क्या है? This bit,
right, to get 99th percentile and above in that particular section, in DILR section, आपको आधे से एक दो या तीन क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, right? 50% of the questions and some more. Done? Keeping in mind the accuracy. So 2024, we are still going to keep it unpredictable, right? Because there's no way in which we can know. But we can say that we are kind of going to see something similar because they seem comfortable with this now. The students seem comfortable, the applicants seem comfortable, and the paper setters also seem comfortable with it. So we're going to say that this could be the prediction for 2024 also. But then, again, you never know. So this is the trend. This is what we've seen over the years. 2017 से लेके 2023 तक, in these 7 years, we've noticed this has been the pattern, right? So we've understood what the pattern is all about. Now let's get into the the idea of what CAT level questions are all about. ये एक काफी concerning question है जो हर वक्त, every time we take a class, every time you practice, every time you take up a sectional test, a mock test, every time you look at some questions from different sources, आपके दिमाग में आता है क्या ये CAT level है या नहीं. Now this is a very ये बहुत gray area है, right? Because CAT level, how are you going to define CAT level? राइट जैसे मैंने बोला, अगर एक डिफाइंड सेट ऑफ मटेरियल है कि बॉस ये ही है मटेरियल, ऑफिशियल मटेरियल, ओके, ऑफिशियल मटेरियल यही है, इसे आप देख लो, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कैट, क्योंकि ये इनका सिलेबस है. सो अ लॉट ऑफ एग्जाम्स ब्रिंग इन समथिंग कॉल्ड ऑफिशियल गाइड, राइट? जैसे जीमैट है, जीआरई है, उनका ऑफिशियल गाइड होता है कि ये गाइड के सिमिलर पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगेन, राइट? there's हार्डली एनी सिचुएशन जहां पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रेप्लिकेट हुआ, बट सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दे गिव यू अ टेस्ट ऑफ इट, राइट? एंड सम अदर टेस्ट जहां पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा. मतलब अगर जैसे रिटन टेस्ट हम देते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वी न्यू कि ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें से ये क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये 16 मार्क का, 10 मार्क का, 8 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, इन्हीं में से आएगा. एंड आवर टीचर वुड आल्सो टेल अस कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक मिलता था, ऑल दैट. कैट इज इन सब चीजों से परे है, राइट? ये सब कैट के लिए मोह माया है. क्वेश्चन बैंक, फिक्स्ड सिलेबस, ये सब कुछ, दीज आर ऑल वे टू बेसिक फॉर कैट. फॉर कैट यू हैव टू बी गुड एट everything, right? That's what CAT expects you to be. You have to good at it. You have to be good at it. They would not say good at what. वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, अभी तक नहीं बोला है कभी कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पे या कोई भी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. Never has that happened, right? Although they have released a lot of official mocks, previous year papers available हैं, but then they've left it to your discretion, है ना, कि बॉस आप करो रिसर्च, आप उठाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, उठाओ सैंपल पेपर्स, उठाओ फ्रॉम ऑफिशियल सैंपल पेपर्स अगर है तो वो उठाओ, या जो ऑफिशियल मॉक आता है वो उठाओ, एंड देन सिट एंड एनालाइज इट ऑन योर ओन टाइम, है ना? मतलब आप टाइम स्पेंड करो, आप एनर्जी स्पेंड करो, एंड देन डू इट. नो स्पून फीडिंग हियर, राइट? So what I have to tell about CAT level is there's nothing called CAT level, and this is what I have realized in at least looking at these 7 years के paper. Obviously पहले के भी देखे हैं, but इनके official papers out है ना, officially the papers are out, and this is what we've seen in these 7 years के never has it happened कि सारे set, सारे ही questions extremely difficult हैं, सारे ही questions extremely easy है, because then फिर वो test बायस्ड हो जाएगा, है ना? कि चलो अगर मैं सब कुछ ना, इफ आई आस्क मोर से फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो फिर वो कॉमर्स वालों के लिए आसान हो जाता है. इफ आई आस्क मोर इक्वेशंस एंड अलजेब्रा रिलेटेड, ज्योमेट्री रिलेटेड, तो फिर वो साइंस वाले के लिए हो जाता है. सो सिंस दे डोंट वांट दिस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव लेफ्ट इट एम्प्टी के बॉस आप देख लो, हम पूछेंगे बस, आप देख लो कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है. इवन विद द डिफिकल्टी लेवल दिस हैज हैपेंड, राइट? Because ultimately ये ना, this is not a test of your maths, this is not a test of your language ultimately, right? This is a test of how well you're able to perform under the pressure of the examination. So what the kind of conclusion will come to is, we see easy questions also asked in CAT, we see medium level questions, moderate level questions also asked in CAT,
and we see hard level questions also asked in CAT. Now when I say easy, medium and hard, इनके definitions अलग अलग हैं, right? Say division number, किसी number को divide करना, 10 divided by 2 is equal to 5, right? Divide करना, division for maybe a first grade student could be very hard task. For a second standard, third standard student, it could be a moderate level task के हाँ boss divide कर लेंगे. But for somebody who's been using division all through their life for about 20 years, आपके लिए divide division करना would be an easy task. So easy, moderate, hard जो है वो each perspective से change होता है, right? It's not a standard difficulty level. I hope you are understanding it, right? ये जो measurement है इसका कोई standard unit नहीं है कि boss this is how you define easy, this is how. So this easy, medium and hard in vague terms basically means with respect to CAT का, with respect to CAT, right? कि CAT में अब तक जैसे क्वेश्चंस आए हैं, अब तक जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, they have kind of maintained this and we have seen कि ये जो easy, medium, hard का होता है, they normally don't ask all the questions hard, normally can't ask all the questions easy, क्योंकि फिर सब लोगों को 99th percentile and above आ जाएगा and then the selection process will again become tedious, right? So ultimately what they do is they'll give more moderate level sets, but then they'll throw in the occasional easy level also. And to surprise you, in fact, a mandatory thing is that they'll add 1 or 2 sets that are extremely hard as well, right? So जब मैं hard बोल रहा हूं, it could be complex in the terms of understanding the question, understanding the scenario. It could also be in the terms of the length of the solution process. It could also be in the terms of how the questions are framed. सब कुछ है ना? So we're walking on very thin ice when we say easy, medium, hard. क्योंकि फिर easy क्या है? OMETS level का DILR is that easy? तो फिर उसमें भी you have hard questions and easy questions, right? So ये बहुत intrinsic चला जाता है, इसीलिए I never use the terms easy, moderate or hard in my classes, है ना? हम क्या use करते हैं? We use the confidence level. Okay, what amount of confidence do you have or do you require to answer this question? Do you require only 20% confidence? Do you require 40, 60, 80, 100? A lot of times we come across previous year questions that require 120, 150% confidence also. कि अगर आप में इतना confidence है तभी आप ये set attempt भी कर पाएंगे, वरना you will get stuck midway or you will not even be able to start that particular set, है ना? So please understand there's going to be a good mix of easy, moderate and hard questions. This is for you all क्योंकि layman terms में मैं समझाना चाहता हूँ. Otherwise you will have a good mix of all confidence level sets, ठीक है? Or at least questions. So please stop asking this question. Never ever ask this question to your teachers or even to yourself. क्योंकि a lot of times you ask a question to yourself कि क्या ये CAT level का लग रहा है? बॉस अगर ये question आपके सामने है, if you see a question in front of you, your duty should be to answer it, find a way to solve it and not judge it. ठीक है, आपको जजमेंट नहीं देना है कि नहीं यार ये CAT लेवल तो नहीं लग रहा, इसको थोड़ा नीचे गिरा, थोड़ा स्नैप लेवल, थोड़ा एनमैट लेवल बोलते हैं. नो, दैट्स नॉट आवर टास्क, है ना? सो स्टॉप आस्किंग कि क्या ये इस लेवल का क्वेश्चन है, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दैट इज व्हेन यू विल गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, you will give equal importance to all the types of questions and you will be able to become comfortable with that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Let's talk about what is it that they want from our section. Boss, DILR से चाहते क्या हैं ये? What exactly is that they want from it? कि boss बोलो क्या चाहिए, right? Now a lot of people think that कि DILR को रख के they want to check how well you are able to do the calculations, how well you are able to analyze the data, read the data. That is all secondary, right? That's not what the test is all about. The test is all about testing how well you're able to adapt yourselves, right? How well are you able to make decisions in such scenarios? क्यों? क्योंकि आपको पता है, let's say अगर current pattern के हिसाब से चल रहा है, तो if there are say 20 questions asked, उन 20 में से आपको पता है, you should have done some research, या आपने ये ऐसी वीडियोस कुछ देखी होंगी जहां पे आपको पता चलता है कि यू डोंट नीड ऑल द क्वेश्चंस टू स्कोर वेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, राइट? रैंक वेल. तो वो कौन से ऐसे 50% एंड अबाउट जो क्वेश्चंस हैं वो आप चूज करने वाले हैं. व्हाट वुड रन इन योर माइंड व्हाइल डूइंग दैट? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है,
नाउ देर आर चांसेस के ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कहीं किया हो, बट देन दैट द चांसेस ऑफ दैट अकरिंग इज वेरी वेरी लो, क्योंकि कैट में इफ यू नोटिस कैट होता साल में एक बार है, 3 स्लॉट होते हैं, अगर 4 सेट पूछ रहे हैं 4 into 3 12, राइट, 12 सेट्स ओनली आस्क्ड, इन 12 सेट्स में भी अगर रेप्लीकेशन हो, इमिटेशन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, या सिमिलर पैटर्न के सिर्फ नंबर बदल जाते हैं, the chances are very very low for that to happen in DILR. And when I say very very low, they're close to zero. Over the years हमने देखा है कि सेम क्वेश्चन तो कतई आया ही नहीं है, एटलीस्ट इन द लास्ट 7 years हमने देखा है कि नेवर was a question repeated directly, and also never similar such situation has happened कि सेम सिनेरियो चल रहा है, सेम लॉजिक के साथ दूसरे नंबर्स के साथ कोई सेट आया हो, राइट? So we've never seen something like that. That means they are testing how well are you able to solve a given problem with the resources that you currently possess, right? How well are you performing under the pressure? यहाँ पे pressure क्या होता है? Time का pressure तो है ही है, because there'll be a timer running like a naked sword over your neck, right? But इसके अलावा क्या pressure होता है? The pressure of the fact that this test happens only once a year. The pressure of the fact that आपने 1 साल या 1 साल से ज्यादा या somewhere around that time आपने spend किया है, invest किया है, क्या ये वो returns देगा नहीं देगा, right? A lot of our futures ride on this test, है ना, कि अगर ये टेस्ट निकलता है तब जाके आगे हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो होगा, अदरवाइज you're set back by 1 year. तो आर यू एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ बॉस यही रियलिटी है, इस प्रेशर के अंडर भी क्या आप सही से परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं, दैट्स अनदर थिंग. नेक्स्ट, क्रिएटिविटी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट नॉट क्या आप वहां पे चमकीले पेन लेके गए, मिकी माउस वाले स्टिकर लेके गए, दैट्स नॉट द थिंग देयर, राइट? द क्रिएटिविटी पार्ट देयर इज व्हाट, हाउ क्रिएटिवली आर यू एबल टू लुक एट अ प्रॉब्लम. आपका परसेप्शन कितना क्रिएटिव है व्हेन इट कम्स टू दैट प्रॉब्लम, राइट? स्टैंडर्ड सेट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वेरी रेयर केसेस, राइट? तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा के आंसर तक पहुंचना ही पहुंचना होता है. So they test your creativity and how comfortable you are with the entire process of that test, है ना? So this is what they actually need from you, instead of you sitting and cramming up, रट्टा मारना फॉर्मूलास को, रट्टा मारना के हाँ यही स्टेप्स है, ये ऐसे ऐसे होता है. Those hardly work, right? Practice will definitely work. Cramming up, ratta marna, that has never worked in CAT, right? And will not, क्योंकि direct questions, the chances again of seeing a direct question, especially in DILR में direct होता ही क्या है? It's not like हाँ बॉस यही है ऐसे ऐसे टाइप के questions आते हैं, ये आ रहा है, नहीं. In the same topic, in the same subtopic, in the same similar kind of questions, you will see the variety is right way too high. So this is what they require from you, ठीक है? So we are done looking at the DILR section, हमने समझ लिया. I know this video might take you a little longer, but it is needed, है ना, क्योंकि ये reality check हमें करना ही करना है. Moving on, let's talk about the DILR syllabus. DILR का कोई fixed syllabus नहीं है. There is no situation जहां पे आपको कोई syllabus का book दिया है, official notification आया है कि बॉस यही syllabus है. Obviously, you go on the internet, you search for DILR syllabus or CAT syllabus, you will find a lot of websites. But again, वहां पर भी अगर आप देखोगे, there will be conflict between these two. दोनों same नहीं बोलेंगे, right? Some will talk about, some websites might mention an extra topic or a less topic, right? Or might give more importance to a topic because it's unknown, right? Unknown territory है ये altogether. So with DILR syllabus, like I said, CAT expects you to be good at everything. With DILR, what you should be comfortable with is maths, because obviously, let's be honest, you will be dealing with numbers, you will be dealing with operations, you will be dealing with a lot of maths, right? So you have to be comfortable with maths. और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि सर मैथ्स से कंफर्ट नहीं बन रहा था, इसीलिए तो हमने आर्ट्स लिया, इसीलिए तो हमने कॉमर्स लिया, या इसीलिए तो हमने ये वाला इंजीनियरिंग का स्ट्रीम लिया, राइट? अ लॉट ऑफ सिचुएशन हैपेंस, but then you have to make peace with it. When I say maths, you don't have to get into advanced mathematics, right? आपको Fourier series ये सब जानने की जरूरत नहीं होती है, डबल इंटीग्रेशन ये सब करने की जरूरत नहीं होती. You just have to be comfortable with basic math,
राइट, बेसिक नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंपल वाले ऑपरेशंस होने चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट एट दैट टाइम. दैट्स ऑल मैथ्स इज ऑल अबाउट इन DILR. And the next thing is the language, which is English in this case, right? So you have to be comfortable with the language, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ये बता क्या रहा है, हाउ विल यू बी एबल टू आंसर इट, राइट? तो ये दिक्कत बहुत लोगों को होती है, स्पेशली जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस लैंग्वेज को लेकर, राइट? सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मेरा सजेशन रहेगा चालू कर लो, राइट? चालू कर लो. क्यों? आई अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, राइट? 12th फेल मैंने भी देखी है, स्टील का ग्लास, कांच का ग्लास. But the idea is, since here the medium is only English, right? A lot of tests, they give you the options of choosing the choosing the mode of language. But this will become a lot of, this will create a lot of difficulty, क्योंकि जब आप you crack CAT, you get a good score, you get into a B school after, let's say somehow आपने GD, WAT, PI round भी clear कर लिया without the help of the language. Not possible, but let's say you have. बाद में किया, right? How are you going to look into case studies that are international level case studies, जो नॉर्वे में किसी स्टार्टअप के साथ हुआ था? How are you going to understand in your own regional language, right? That's going to be very difficult, right? So the idea is not to impose a language on you, but to tell you कि यही medium है boss, इससे comfortable हो जा. So you have to be comfortable with maths, you have to be comfortable with English. Only then you can be comfortable with DILR. To make this piece, DILR कोई स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं लेके आता है कि बॉस ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ DILR का कॉन्सेप्ट है. नहीं, इट इज अ गुड मिक्स ऑफ बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश. हाई टाइम यू गेट कंफर्टेबल विद इट. अगर आपको कोई भी स्टेज में लगता है कि मैं DILR से कंफर्टेबल नहीं हूं, one of the reasons would be either maths or English. So start getting better at these and you will ultimately start feeling comfortable around this area. ठीक है? Now, अच्छा, let's get into some actual facts now. ज्ञान तो दे दिया, थोड़ा फैक्ट्स में चलते हैं कि ओवर द इयर्स हमने क्या देखा है, राइट? ओवर द इयर्स हमने देखा है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं इन DILR, राइट? We've seen, questions asked from arrangements, distribution, games, tournaments, map networks, puzzles in the, LR part, logical reasoning part. And then we have been asked questions based on tables, pie charts, bar graphs, line graphs, caselets and word problems, miscellaneous charts, Venn diagrams, missing data when it comes to DI. So अब ये this again does not cover the fact कि हाँ बॉस ये कर लो तो काफी है. This CAT is a very greedy test, right? कि आप जितना भी कर लो कम है. So you need to keep pushing your boundaries. अगर आप किसी चीज से comfortable हो रहे हैं, खुद को थोड़ा push करिए. Go for the next thing that you are not comfortable with. ठीक है? So this is what we've seen, and यही हमारा structure भी होता है when it comes to the classes that we take. Now what have we seen in terms of frequency? कि कितना frequently एक particular topic से set आए हैं. Now again keep in mind guys कि जब ये टॉपिक बोल रहे हैं, a lot of times you come across some sets जिन्हें देख के आप ये भी नहीं बोल सकते ये कौन से टॉपिक में गिरेगा, right? So that situation has we've come across that situation quite frequently. तो यहाँ पे देखो ये frequency है कि अरेंजमेंट से इतना frequently question आया था. That does not mean 4 question आए हैं, right? So since again the number of questions can't be perfectly determined, तो हमने क्या किया है, we've put it in terms of the rating, right? तो अगर ये 4 का रेटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड ये 6 का रेटिंग है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स 3 का रेटिंग है, मैप्स एंड नेटवर्क्स 3 का रेटिंग है, पजल्स 5 का रेटिंग है बिकॉज पजल्स अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, टेबल्स 3 का रेटिंग है, टेबल्स डायरेक्ट टेबल्स इन DI, राइट? डायरेक्ट पाई चार्ट्स ओनली 1 का रेटिंग, डायरेक्ट बार ग्राफ्स 3 का रेटिंग, लाइन ग्राफ्स 2 का रेटिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स 4 का रेटिंग, मिसलेनियस चार्ट्स में आते हैं आपके स्कैटर प्लॉट, रेडार चार्ट, ये सब है ना. तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 का है. वेन डायग्राम्स वीव सीन क्वाइट फ्रीक्वेंटली, सो 3 का है. मिसिंग डेटा 3 का है, राइट? सो दैट्स this is not based on any quantity or something but based on an opinion कि हाँ ये पेपर देखने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि इसमें से ज्यादा आया है, इसमें से कम आया है. दिस इज बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी दैट यू शुड गिव. कौन से टॉपिक को आपको लगता है ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? Yes, it seems like we should give the highest priority to distribution क्योंकि वो ज्यादा frequently appear हुआ है. I understand
वेरी रैशनल थिंकिंग, काफी रैशनल है ये थॉट प्रोसेस आपका कि बॉस जो ज्यादा पूछा जाएगा उसी में ज्यादा कंफर्टेबल होना है, डेफिनेटली उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देखना है, डेफिनेटली. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेट could be based on a concept of games and tournaments. It could be based on, one of the DI topics. It could be based on simple arrangement. It could be based on a given map or a network diagram, right? तो ऐसे बहुत situations आते हैं जहां पे आप you can't define कि हाँ बॉस ये वाला जो सेट है ये इसी टॉपिक का है, राइट? DI या LR भी डिफाइन करना आजकल मुश्किल हो गया है because the kind of sets we see are always the hybrid ones जहां पे DI based LR या LR based DI ही होता है, right? So in terms of the the priority, I would say you should prioritize each of the topic equally, right? सारे टॉपिक्स आपको इक्वली प्रायोरिटाइज करने हैं. ऐसा नहीं कि आप अच्छा तो सर डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सेट आते हैं तो मैं काम करता हूं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही करूंगा, राइट? हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पाई चार्ट्स क्यों करना है, काफी रेयर आया है क्यों ही करना है, निकाल देते हैं, राइट? रेयर डज नॉट मीन इट विल नॉट अकर अगेन, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, राइट? तो रेयर डज नॉट मीन दैट इट विल नेवर अकर. नाउ जब आपका टाइम खराब चलता है तब क्या होता है, जो टॉपिक आपने स्किप किया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने इंटेंशनली स्किप किए हैं, वहीं से कुछ ना कुछ आता है, राइट? एंड दिस we've seen over the years, not just in DILR but also in quant. कई बार ये होता है कि सर ये वाला एरिया जो है ये काफी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए या ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, so I'm not going to do this year. I'll leave it and maybe no questions would be asked from it. But then it turns out कि उसमें से ज्यादा questions आए हैं, या ज्यादा नहीं तो भी 3-4 questions आए हैं, and then that becomes a वो बीटी हो जाता है अपन को, राइट? कि यार क्या यही हमने छोड़ के गए थे और यही आ गया. तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गिव दैट अ चांस, है ना? कि कोई लक के कारण, कोई कोइंसिडेंस के कारण आपका टेस्ट देने का एक्सपीरियंस बीटी में बदल जाए, राइट? सो प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द टॉपिक्स पॉसिबल. यस, तो ये सारे टॉपिक्स हम कराते हैं. वी ऑलवेज कवर दीज सम पर्टिकुलर लेक्चर, सम पर्टिकुलर टॉपिक्स हम 2 क्लासेस लेते हैं to ensure that you become more comfortable with it. So again, it's not about the priority, it is not about the frequency, it's about how comfortable you are, how much confidence you gain in that particular topic. ठीक है? तो ये I think ये आपको समझ आ जाना चाहिए, because without understanding this you will be stuck in that infinite loop, है ना? वो लूप में आप फंसे रहोगे. क्या ये कैट लेवल का सेट है, क्या ये कैट में पूछा जाता है, क्या ये कैट का है, सर ये सिलेबस में है क्या, ये आता है क्या, ये कब आया था. दिस इज गोइंग टू बी एन इन्फिनाइट लूप. ये लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. तो बिफोर इवन यू गेट इनटू दैट लूप, अगर अब घुस गए हो तो फाइंड अ वे आउट. अगर आप कभी नहीं गए हो ऐसे लूप में तो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टे अवे फ्रॉम इट. आपका काम, लाइक आई सेड, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है, क्वेश्चन को जज करना नहीं है. बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि फ्रीक्वेंसी कुछ और है, प्रायोरिटी कुछ और चल रहा, कोई टॉपिक फिक्स नहीं है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस, डीआई से कितने क्वेश्चंस आएंगे. 2023 में हमने देखा प्योर डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी ग्राफ नहीं, नो पाई चार्ट, नो बार ग्राफ, नो लाइन ग्राफ. सर पटक पटक के हमने ये समझा था कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, बट आया ही नहीं. क्या ही कर सकते हैं, राइट? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज cat, just like the animal, is very very unpredictable, right? ये कब क्या कैसे कर दे, nobody knows about it, nobody can predict it, right? We've seen के कई बार some unknown area से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टाइप ही बदल देते हैं, क्वेश्चन टाइप ही पूरा बदल देते हैं. We've seen that in VARC, right? कि a new type of question is being asked. So they keep doing this experiment so that it doesn't become monotonous. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा टेस्ट प्रेडिक्टेबल है. बॉस मेरे को पता है इस टेस्ट में ऐसे स्कोर कैसे लेके आना है, आओ मैं आपको सीक्रेट बताता हूं और उसके साथ खत्म. दिस शुड नेवर बी द केस एंड दिस हैज नेवर बीन द केस, स्पेशली विद कैट. ठीक है, तो अब हमने सिलेबस तो कवर कर लिया. नाउ वी आर गोइंग इनटू प्रिपरेशन टेक्निक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल दैट मैटर्स, है ना? आप कैसे, कितना, कहां पे प्रिपेयर कर रहे हो, आर यू डूइंग इट इन द राइट वे और नॉट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, राइट? So let's get into the preparation technique. Let's look at what the phase 1 should be. So if you are somebody who's starting now, don't worry, आपके पास काफी टाइम है. You have
over 10 months of time आपके हाथ में, which is sufficient, right? Which is good enough. I wouldn't say such sufficient because like I said, cat greedy है, तो उसके लिए कुछ भी बस ऐसा नहीं है, but acceptable amount of preparation time है आपके पास, which should be good enough for your getting a decent score in DILR. तो phase 1 में again like I said, it is going to be a good mix of maths as well as verbal English, so you have to be comfortable with both. So when I say when I give you a task, that applies for both maths as well as for English. ठीक है, तो phase 1 में आप foundation करेंगे, right? This is a free batch, a batch that is available for free. You don't have to be a part of any batch to access this. ये free में available है on YouTube as well as on the PW app. यहाँ पे your task is going to be what? You're going to watch the lecture. While watching the lecture, जो भी set, जो भी questions हम करा रहे हैं, उन्हें आपको solve करना है साथ में. तो you will have the option of pausing it, क्योंकि ये pre-recorded है. आप उसे pause करेंगे, आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स हियर, फर्स्ट अप्रोच मैटर्स हियर. आपको ये नहीं करना है कि हाँ बॉस ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर करना है, वही टेम्पलेट छाप के आगे नहीं होता है. दैट डजंट वर्क, राइट? इट्स नॉट लाइक अ मोल्ड इज क्रिएटेड, उस मोल्ड में आप पीईटी डाल दो, उस मोल्ड में आप पीओपी डाल दो, वही का वही आएगा. नो, राइट? once you are done watching the lecture and you learned something while solving the sets along, also give it a try. Okay, after you watch it, solve the lecture sets again on your own, right? This is very important. खुद से फिर दोबारा ट्राई करो. अब आपने कुछ ट्राई किया, नहीं वर्कआउट हुआ, आपने उसका ट्यूटोरियल देखा, आपने सीखा, हाँ बॉस वहां पे तो ऐसे चल रहा है. यू ट्राई इट अगेन ऑन योर ओन. ओनली देन यू कैन कंफर्म कि हाँ बॉस अब थोड़ा कंफर्टेबिलिटी बढ़ रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हम लोग कुछ लेक्चर देखते हैं, जस्ट लाइक हाउ इट वर्क्स इन DIY वीडियोस वगैरह हम देखते हैं यूट्यूब पे, वैसा ही, राइट? कि वीडियो देख लिया, यार वीडियो में तो आसान लग रहा है, क्या है करना है, स्क्रू ड्राइवर डालना है, ऐसे 4 स्क्रू निकालने हैं उसके, और फिर ये सोल्डर करना है, ये वो करना है, बस हो गया, इजी है. बट फिर आपको दिक्कत होती है कि स्क्रू ड्राइवर क्या है बॉस, ये मेरा स्क्रू ड्राइवर अलग लग रहा है, उधर अलग था, ये स्टार वाला है. आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? So unless and until you try it on your own, you will not become comfortable with it, and unless and until you're comfortable with it, you can never be able to score good score in DILR. The next part of this, इसके बाद का पार्ट क्या होगा कि you practice, right? So foundation के DPPs हैं, ये भी freely available, right? These are also available for free on the these are available on the website only. Website and app पे ही available है, ये YouTube पर भी है, but these are available on the website and the app. These buttons, ये जो है, ये बटन और ये बटन जो है, ये क्लिकेबल लिंक है ना, ये और ये. तो जब आप ये वीडियो नोट्स में देखोगे, इसका नोट्स PDF जब आप देखोगे, यू कैन क्लिक ऑन देम एंड इट विल टेक यू टू दोस वीडियोस, ठीक है, और टू दोस पार्ट्स ऑफ DPPs. तो आपको DPP लेना है एज अ क्विज. नाउ दिस इज फॉर पीपल हु ऑलरेडी टेकन DPPs. अ लॉट ऑफ टाइम्स आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट PDF में देखते हो, आपको आप बैठे बैठे एक सेट देखा, आपको लगा कि नहीं बॉस ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट सोल्यूशन में जंप कर देते हो, फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत इजी है. ये इजी नहीं है. सोल्यूशन आपने देखा इसलिए आपको इजी लग रहा है. इट मे बी और मे नॉट बी इजी. अगर इजी है तो बहुत बढ़िया खुद से सॉल्व करने पे, बट अगर आपको सोल्यूशन देखने के बाद इजी लग रहा है, दैट मींस यू डिड नॉट डू इट ऑन योर ओन. तो उसका जो पर्पस है वो पूरा डिफीट हो जाता है ना. एनालाइज एंड सॉल्व द सेट्स अगेन, राइट? टाइम लगेगा. आप पूछोगे कि सर इतना करने का टाइम कहाँ है? 10 महीने हैं बॉस. 10 months, that's about 300 days. 300 दिन, way more than sufficient, ठीक है, और good enough. Analyze and solve the sets again. This is very important कि आप खुद से try करें, just like I told you here. And then when you are not feeling right about it, then you can refer the text or the video solutions also if available. ठीक है, done. That's phase 1. phase 2 क्या है? Doing the same thing but a level up, right? तो आपने फाउंडेशन देखा, फाउंडेशन कवर्स ऑल द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, सबका बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल पे चालू किया. नाउ वंस ग्राउंड लेवल पे आपने फाउंडेशन ले कर दिया है, अब क्या करोगे आप? ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, है ना, ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, आपका पूरा लेआउट देखोगे. तो दैट्स वेयर phase 2 comes into play, जहां पे एसेंशियल्स बैच आता है. अगेन एसेंशियल्स बैच इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री, राइट? सेम टास्क आपको करना है, लेक्चर देखो, लेक्चर के साथ साथ सॉल्व करो, लेक्चर के बाद वही सेम क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करो. डू द DPPs ऑल्सो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPPs भी करो, क्विज की तरह से लेना है,
क्विज खत्म होने के बाद फिर दोबारा से ट्राई करो एक बार सेट। कई बार ये होता है कि टाइम सफिशिएंट नहीं है, इतना करने के लिए ये टाइम काफी नहीं है, बट अगर आराम से थोड़ा करें तो हो जाएगा। ट्राई इट अगेन एंड देन इफ यू स्टिल आर नॉट एबल टू सक्सीड देन यू गो फॉर द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये दो हो गए फ्री वाले, राइट। फेज 1 फेज 2 आर बोथ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। बोथ DPPs as well as the videos. Again, these are clickable links, so इन्हें आप क्लिक करके ये they'll take you there. Now the third thing comes where we are going a little bit into advanced, a little bit more closer to the kind of questions that CAT is used to. जहाँ पे हम लेके आए हैं बैच वाले, right? So if you are a part of a batch, then phase 3 is for you, right? Same process करना है, but with the lectures that we take in the batch, right? तो आपको क्या करना है, सेम लेक्चर देखो, साथ में सॉल्व करो एंड दोबारा से खुद से सॉल्व करो। DPP क्विज की तरह लो, दोबारा से देखो PDF में देख के, एंड देन इफ यू स्टिल नॉट एबल टू सक्सीड, या अगर आपको वैसे भी एनालाइज करना ही है, सर मैंने एक तरीके से सॉल्व किया, मेरे को देखना है कि एक कोई और तरीका है क्या, इसको इजियर तरीका है क्या, लेस कॉम्प्लेक्स तरीका है क्या इसे सॉल्व करने का, या लेस टाइम कंज्यूमिंग तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए, देन यू कैन गो वॉच द टेक्स्ट और द वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ विथ योर प्रैक्टिस, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, आप सर्च करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप आर बुक्स, बिकॉज कोई भी टेस्ट के लिए आपको बुक्स चाहिए तो आप बुक्स के लिए जाते हो। नाउ द प्रॉब्लम विद बुक्स इज वो टेक्स्ट में है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स स्पेशली विद DILR, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टेक्स्ट में नहीं समझ में आता, एंड दैट्स द मेजर रीजन व्हाई देयर इज द होल रेवोल्यूशन इज हैपनिंग, राइट, कि क्लासेस लाइव ऑनलाइन हो रही है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स एंड राइटिंग एंड इमेजेस एंड ऑल द पिक्चर्स। ये क्यों करते हैं, सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर सेइंग। अगर टेक्स्ट में है और मैं यहाँ पे आके ऐसे ही वो टेक्स्ट पढ़ने भी लग जाऊं, फिर भी इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर गेटिंग इनटू प्रिपरेशन? Don't note down entire questions. Now this is something that I've noticed a lot of people doing, कि पूरे questions को note down करते हैं। तो क्वांट में क्वेश्चन को नोट डाउन करना may not be a difficult task, but imagine अगर आप बैठ के पूरा RC पैसेज नोट डाउन कर रहे हो, अगर आप पूरा DI का सेट, LR का सेट बैठ के नोट डाउन कर रहे हो, उसके पीछे का पर्पस क्या है, आप क्या ही करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू बाय नोटिंग डाउन द क्वेश्चन, द आइडिया इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट, राइट। तो आपका जो नोट टेकिंग प्रोसेस है, हैज टू बी हाइब्रिड, मतलब क्या, it has to go in terms of the e-material also and the physical material that you do, that is your notebooks and stuff, है ना। I mean if you are somebody जो राइटिंग पैड है आपके पास, राइट, राइटिंग पैड है, डिजिटल पैड है, उससे आप कर रहे हो, iPad है आपके पास या जो भी टैब है उसमें आप डायरेक्ट नोट्स ले रहे हो, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट इफ यू आर लाइक एनी अदर पर्सन जो प्रिपेयर कर रहे हैं और नोटबुक्स और पेन के थ्रू कर रहे हैं, देन यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल विद द हाइब्रिड लर्निंग, राइट। हाइब्रिड नोट टेकिंग मतलब क्या, ई मटेरियल में आपके PDF फॉर्म में आपके ऐप पे सारे नोट्स वैसे ही मिल रहे हैं एनोटेशन के साथ। तो अभी ये सब जो मैंने लिखा है वो ऐसे कैसे आपके नोट्स में मिल रहे हैं, राइट। तो व्हाई वेस्ट टाइम नोटिंग डाउन एंटायर क्वेश्चंस, इसका कोई पर्पस ही नहीं है। नाउ आई आल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ नीट फ्रीक्स जो बहुत नीटली पूरा क्वेश्चन लिखते हैं ब्लैक पेन से, फिर ANS डॉट डाल के ब्लू पेन से गिवन डेटा, ये सब कुछ आराम से, फिर लास्ट में देयरफॉर आंसर, हेंस प्रूव्ड, अंडरलाइन करना, स्केल से लाइन करना। आई अंडरस्टैंड यू लाइक टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट, but you also have to understand the priority here, right? Don't spend too much time in doing it in a specific way, right? ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैट में जब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई लॉन्ग साइज नोटपैड नहीं मिलेगा, नोटबुक नहीं मिलेगा, जहां पे यू कैन गो ऑल ऑर्गेनाइज ऑन, यू विल गेट अ बुकलेट, आपको एक नोट पैड जैसा मिलेगा, वो नहीं आता पतला सा नोट पैड, राइट, यू विल गेट अ नोट पैड देयर with limited pages। तो वहां पे अगर आप ये सब करने लगे, you will waste a lot of time in doing things that are not going to lead to anything। ऐसा नहीं है कि वो आपके रफ शीट को देख के, रफ वर्क को देखेंगे कि बॉस मार्क्स नहीं आए, क्वेश्चन सही नहीं है, बट देखो यार इतना नीट नहीं, ठीक है। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू देन, नोट द टॉपिक। तो जो आप नोटबुक में कर रहे हो, नोटबुक में आप जो कर रहे हो उसमें आप टॉपिक नोट डाउन करोगे, क्योंकि उसका PDF फिर डायरेक्टली अवेलेबल होगा। सेट का नंबर नोट डाउन करोगे कि ये सेकंड सेट है, थर्ड सेट है, उसमें आप डायरेक्टली जंप कर लेना।
एंड कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो वो नोट कर लो बस, राइट? एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, जस्ट नोट डाउन सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नेम, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो जब भी आप करोगे, इट हैज टू बी बोथ एट द सेम टाइम. आप अपना फोन या लैपटॉप ओपन करके वो पीडीएफ ओपन करके, एंड देन यू विल बी लुकिंग एट द नोट्स एंड कंपेयरिंग. ठीक है. नेक्स्ट, you're supposed to solve in your notes how you would solve in the test also, क्योंकि you know it's not a one night thing. Practice लगता है to get comfortable with the whole process of being able to solve it there. तो वो आपको ध्यान में रखना है. ऐसे नहीं कि आप स्केल पेंसिल यूज कर लिए. You cannot use a scale and a pencil there in the test. आपको सिर्फ एक blue ball point pen मिलेगा. That's it, right? No erasers, no कुछ भी नहीं. No pencil, no स्केल, आपको प्रोट्रैक्टर नहीं मिलेगा टू लुक एट द एंगल, कंपास नहीं मिलेगा, नो, राइट? नन ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन. द ओनली टूल यू विल गेट इज अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन एंड अ नोटपैड, लाइक आई सेड. ठीक है. नाउ दिस अगेन, व्हेन वी टॉक अबाउट टूल्स दैट यू गेट, साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. सो इफ यू डू नॉट गेट दैट इन द टेस्ट, should you be using it in your practice sessions, in your lectures? You should not be, right? मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना इज ओनली गोइंग टू हिंडर द प्रोसेस ऑफ यू गेटिंग कंफर्टेबल विद द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दैट दे गिव यू देयर, राइट? So I've already made a video on the calculator and the functions that they have in the in CAT. आप उसके हिसाब से करो. तो वो कैलकुलेटर कौन सा होगा? If you have a laptop or a PC, आप अगर उसमें देखोगे तो you can find this calculator, right? ये आपका on screen calculator, right? It will look similar to this, right? It will have all of these features. Square root रहेगा, square रहेगा, reciprocal रहेगा, percentage रहेगा. You will have your memory functions there. You will have addition, subtraction, multiplication, division. यही सारे functions रहते हैं उसमें भी, right? So you get comfortable with this. You have to start using this if you want to be more comfortable while using the calculator there, right? And आपको ये mouse से ही use करना है. You cannot use it using your keyboard. ठीक है. So that's about the tools that you're going to use during the tools that you're going to use during the test. ठीक है. So that's that. And then you have refer to the solution only after trying. Don't immediately read the question, decide कि ये नहीं हो पाएगा, ये दिखने में बहुत difficult लग रहा है, ये बहुत complex लग रहा है. Try करे बिना, if you look at anything, it is going to look complex. So a lot of times we come across sets that are asked in CAT also, जो दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, वो एकदम कांदे की तरह ऐसे लेयर 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 बन के निकल जाता है, राइट? एंड समटाइम्स वी कम अक्रॉस सेट्स दैट लुक वेरी इजी, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, यू रियलाइज के बॉस ये कहां पर आ गया अपन, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ सेट्स दैट वी सी. So refer to the solutions only after you're trying on your own, be it previous year questions या sectional test, weekly test या DPPs या class वाले sets, जो भी. And then don't worry about the time consumption. At this stage, you should not be worried about how much time you take by doing the set. One of the more common problems या concerns that a lot of students raise is कि sir set तो हो रहा है but 20 मिनट लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है, फिर 1 घंटा हो गया, एक सेट नहीं हो रहा है, राइट? सो टाइम कंजम्पशन के ऊपर आपका ध्यान अभी नहीं होना चाहिए. यू शुड बी मोर वरीड अबाउट गेटिंग इट राइट देन गेटिंग इट राइट इन द गिवन टाइम, राइट? तो पहले सही करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप टाइम बचा सकते थे, राइट? बट अगर आपका बेसिक ही वीक है, आप सही नहीं कर पा रहे हो उसे, गलत करने के लिए कम टाइम में गलत करो, ज्यादा टाइम में गलत करो, गलत है, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. तो ये हमने प्रिपरेशन टेक्निक देख ली है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस टेक्निक. प्रैक्टिस में ज्यादा कुछ नहीं है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डीपीपी वाला एरिया. तो इफ यू आर समबडी हु इज डन विद फाउंडेशन के लेक्चर सेट्स, डीपीपीस, एसेंशियल्स के लेक्चर सेट्स, डीपीपीस, बैच के लेक्चर सेट्स, डीपीपीस एंड द सेक्शनल टेस्ट दैट हैपन वीकली, राइट? ये अगर आपके हो गए हैं, नाउ अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम बचा है, विच इज क्वाइट रेयर फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि आप लोग या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या आप लोग कहीं पे वर्क कर रहे हैं, या there's समथिंग एल्स गोइंग ऑन, राइट? तो इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना वुड बी डिफिकल्ट. बट अगर फिर भी टाइम बच रहा है सर और करना है,
then in that case these are some things that you can try. You can try practice questions on our channel, YouTube channel पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए हैं वन शॉट के नाम पे, चैलेंजर सीरीज के नाम पे, जहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेट्स कवर किए हैं that were not covered in the classes, right? Then you can go ahead with previous year questions only and only if you're done with all of these, जो कि possible नहीं है, but still only then you will go to previous year questions. क्या करते हैं लोग? हाँ सर, हमने परसेंटेजेस पढ़ लिया, परसेंटेजेस सीख लिया, अब हम परसेंटेजेस के PYQs लगाने गए, वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहे. ऑब्वियसली नहीं होगा. क्यों? आपने जो सीखा है that would probably get you 40% या 60% कॉन्फिडेंस. जो क्वेश्चंस कैट में आते हैं वो 80 या 100% या 120% कॉन्फिडेंस वाले. कैसे करोगे सॉल्व? नहीं कर पाओगे. डिमोरलाइज होगा, डिमोटिवेट होके क्या करोगे? यू विल एंड अप इन द अगेन द ओल्ड विशियस साइकिल के सर नहीं हो रहा, राइट? बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा. इफ यू आर डन विद दीज टू अगेन, इनके बाद अगर आपके ये दो भी हो गए, then you can go ahead with books or other sources that you find on the internet या कहीं पर भी, right? Books, मैंने books पे भी एक वीडियो बनाई है जहां पे I've discussed what kind of books you can refer to, you may refer to provided you're done with these, ठीक है? And then online materials and questions that you can find in terms of sectional test या जो भी जो other websites पे available है, right? So I hope you're catching the drift कि आपका प्रैक्टिस किस हिसाब से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, what should it consist of, what should your focus be. The moment we talk about practice, the next question will be sir कि अरुण शर्मा सर का LOD 3 लेवल करना जरूरी है क्या? Like I again said, CAT LOD 1 2 3 4 जो है ही नहीं, वहां से भी आ सकता है, 0 नेगेटिव में जा सकता है, you never know, right? So I would recommend stop with the book for now. Focus on these things. Once you're comfortable with these things, then you can pick up on the books also. Okay? So that's how you should be doing the practice bit. So I hope you're comfortable with all of these. And to wrap the entire session, let's conclude with talking about some focus points that I want you to keep in mind throughout. Not just now, but throughout. आपको ये ध्यान में रखना है. One, keep in mind planning is very, very important. I still stumble across some students जिन्होंने अब तक शेड्यूल नहीं देखा है, जो बैच के लिए पैसा देके पे करके एनरोल तो कर लिए हैं, बट अभी तक शेड्यूल नहीं देखा है कि सर साल भर में या जितना भी लंबा बैच है, क्या क्या क्लासेस होने वाली हैं, कब कब होने वाली हैं, किस ऑर्डर में आप करा रहे हैं, उस हिसाब से मैं फाउंडेशन देख लूं, उस हिसाब से मैं एसेंशियल्स देख लूं, उस हिसाब से अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस की सिर्फ झलक देखनी है, टू लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कैट और इन अदर एग्जाम्स, ये सब के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. सो इफ यू आर समबडी हु सिट्स विद कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा क्या देखोगे कुछ बचेगा ही नहीं देखने के लिए, राइट? सो डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन और डोंट गेट इनटू योर प्रिपरेशन विद दैट मेंटालिटी अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ स्ट्रांग प्लान. इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, राइट? जो भी टॉपर्स आप देख लो, विदाउट अ प्लान दे नॉट कम दिस फार, राइट? तो प्लानिंग आपको करनी है, ऑब्वियसली प्लानिंग आपको करनी है, बट यू कांट बी स्ट्रिंजेंट ऑन द प्लानिंग, राइट? 9 बजे से 10 बजे रोज करूंगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस करूंगा. कई बार ऐसे हो जाता है कि 9 बजे रात को 9 बजे हमें कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ जाए, वी एंड अप बीइंग अ पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट इन कॉलेज, कल कोई एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्या करें, राइट? सो अंडर दीज सिचुएशंस फिर आप फिक्स टाइमिंग पे नहीं रह सकते, राइट? Your plan should be flexible. It should have some breaks, some gaps in between so that you can, manage. है ना? Cushion होना चाहिए उसमें, ठीक है? Next is priority. Like I said now, आपको prioritize करना है कि at this stage, on this particular day, at this moment, क्या जरूरी है? क्या ये कैट का लेक्चर करना जरूरी है, या कल जो मेरे कॉलेज का एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, जिसके बेसिस पे मेरा एंटायर मार्क्स फॉल करने वाला है, क्या वो जरूरी है? Is this important or this very important meeting that I have planned for tomorrow is that important? So वो prioritize आपको करना है, right? You will have to make that decision और यहीं से आप decision making ability भी better करोगे, right? So you need to prioritize. Is attending this lecture important, या उदय का जो बर्थडे पार्टी है जो वो दे रहा है, एक समोसा और पैटीज का जो पार्टी दे रहा है, वो जाना जरूरी है? Decide, ठीक है? Next, focus on accuracy than on time consumption. I've told this time and time over again. At this stage, you should focus getting it right than getting it wrong in the given time. सर 1 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, सही क्या? नहीं, गलत हुआ. फिर क्या ही पर्पस है उसका? ऐसे एफर्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते कैट में.
कैट में देयर इज ब्लैक और व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया देयर, है ना। ऐसा नहीं है कि यार एफर्ट्स तो बहुत डाला बंदे ने, इतना डिफिकल्ट सेट उसने करने का कोशिश किया है, एफर्ट्स के लिए मार्क्स मिलने चाहिए। नोबडी गिव्स दैट, राइट। स्टेप्स सही है, सही फॉर्मूला लगाया है, बट लास्ट में कैलकुलेशन एरर के कारण गलत हो गया। आधा इट्स इधर 3 marks or 0 marks, nothing in between, ठीक है। Worst case you will get a -1, so you have to be careful there. Next, this is especially when you are practicing, when you are looking at के हाँ आज के दिन में मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं, 10 सेट किए हैं, क्या किया, इतने पैसेजेस पढ़े हैं। प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द क्वांटिटी। मैंने 10 सेट किए हैं, बट क्या वो 10 सेट हेल्पफुल थे, क्या मैंने वो सही तरीके से किए, क्या मैंने उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश की, उसमें कुछ सीखा, या मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, मैंने सोल्यूशन देखा, फिर लगा हा ये तो बहुत इजी है, फिर मैंने खुद से किया और हो गया, राइट। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट। ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो सर 30 मॉक लगाए थे पिछले साल, मेरे को स्कोर ही नहीं आया, नहीं आएगा। It's not about how many mocks, it's about how well you've analyzed it, right? So there's a lot of things there जहां पे quality overpowers the quantity, right? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि quantity मत करो, सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं दिन का आधा सेट कर रहा हूं बस, फिर सो जाता हूं। एंड देन प्रिपेयर अ प्लानर फॉर द डे, राइट। पूरा डे जो है आपने प्लान करना है। अगर आप पूरा महीना पूरा साल नहीं प्लान कर सकते, बट एटलीस्ट प्लान योर डे, राइट। वो डे आपको प्लान करने हैं, आपके जो टास्क हैं वो स्पेसिफिक डिफाइंड टास्क होने चाहिए कि हाँ आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का डीपीपी का सेट नंबर 2 और 3 करने वाला हूं, राइट। मैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच का ये वीडियो देखने वाला हूं। बी स्पेसिफिक व्हेन यू फिक्स योर टास्क। once you're done with the task, have the get the satisfaction of getting it done। कैंसिल करने में जो खुशी, जो संतुष्टि मिलती है कि बॉस यस टास्क हो गया, that is something that's worthy of it, right? So wo karo, and then don't forget to trust in yourselves, believe in the efforts that you're putting, the abilities that you have. Don't forget to trust your teachers who are trying to bring out the best from you, right? So trust the process, have belief, don't start with a negative connotation कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसे कराओगे तो नहीं हो रहा, ये अगर मैं करता रहूंगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Don't keep, you don't have to manifest positive things, but at least don't keep repeating negative things, है ना। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, कर लेंगे, निकाल लेंगे, यस यस यस, ये कर नहीं कर सकते हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट डोंट डिमोरलाइज योरसेल्व्स इन सबकॉन्शियसली, है ना। सबकॉन्शियसली यू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट, वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट, दीज क्वेश्चंस आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट। डोंट डू दैट, राइट। द मोर यू डू दैट, फिर ना अगेन यू विल बी स्टक इन दैट लूप, राइट। वही चलता रहेगा, एंड देन यू एंड योर ड्रीम बी स्कूल कोई संबंध नहीं रहेगा, राइट। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द पीपल दैट यू पुट इन योर बिलीफ इन, एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ करेंगे। नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया, वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि नहीं हो रहा है, but then also take steps to rectify that, ठीक है। So with this I'm going to leave you. We've covered the entire agenda. I know the video kind of stretched, but I hope you understood the kind of points that I'm trying to make. I hope you get the best out of this video. All the very best, guys. Cheers. I will see you all soon. Thank you so much. Bye bye.